Good afternoon, everybody. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Wellbeing Team. And I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health with focus on psoriasis. Psoriasis, a condition in which skin cells build up and form scales and itchy, dry patches. It is thought to be an immune system problem. Triggers include infection, stress, cold. The most common symptom is a rash on the skin, but sometimes the rash involves the nails or joints. It can start at any age, but most often develops in adults between 20 to 30 years old and between 50 to 60 years old. It affects men and women equally. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about psoriasis and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment, and management approach for an early relief. So today we have with us renowned dermatologist Dr. Pallavi Rathi from Mumbai. She is a dermatologist, cosmetologist, and trichologist in Andheri, Mumbai, and has an experience of 10 years in this field. Dr. Pallavi Rathi practices at My Skin, My Health Clinic, Andheri East. She completed her MBBS from PDM Medical College in 2005, MD Dermatology from Nair Hospital Medical College, Mumbai in 2008, and has also done her TDV from BYL Nair Hospital, Mumbai in 2007. She is a member of Indian Association of Dermatologists, Venerologists, and Leprologists, IADVL, and Association of Cosmetic Surgeons of India, ACSI. A warm welcome to you, Dr. Pallavi Rathi. It's such a pleasure to have you with us. Thank you, Sayanta, for such a warm welcome. And today we are going to talk about psoriasis, and I feel that the session would be very helpful to our viewers. And let's get rolling. Likewise, we also have the same feeling because with you, of course, we can, understand what is psoriasis and how we can prevent it, what's the line of treatment, etc., etc. Psoriasis is quite common. I mean, it is a word which is known to people. People know there is a word called psoriasis which exists. And of course, it is related with skin. First of all, doctor, what is psoriasis? How can we understand this term psoriasis? See, psoriasis is basically a autoimmune condition. When we talk about autoimmune condition, it means that there is some disturbance in our immune system, and that is why your skin is not behaving normally, and it keeps on piling up of the skin cells happen, which leads to patch formation. So normally what happens na, एक normal skin में नॉर्मली व्हाट विल हैपन कि एक स्किन शेडिंग होता है जो हमें डस्ट के थ्रू हमारे फ्लोर पे मिलता है या इन हाउसेस वी गेट बट इन सोरियासिस दिस मैकेनिज्म गेट्स डिस्टर्ब एंड एक के ऊपर स्किन सेल्स जमा होने शुरू हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएट पैचेस एंड दिस पैचेस will have lot of itching, lot of redness and inflammation associated, and this is what psoriatic patches normally look like. राइट तो ये सोरियासिस होता क्या है डॉक्टर, क्यों होता है? क्या कुछ खास रीजंस है, फैक्टर्स है जिसके चलते सोरियासिस होता है? सी बेसिकली जब हम ये बात करें कि सोरियासिस क्यों होता है तो देर इज नथिंग लाइक कि यू कैन से कि ये कोई इन्फेक्शन है या किसी मच्छर के काटने से हो रहा है या किसी इससे हो रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन. जैसे डायबिटीज़ ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, बाकी ऑटोइम्यून कंडीशंस होते हैं, आर्थराइटिस होता है, वैसे सोरियासिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो स्किन को अफेक्ट करता है. अब इसमें जेनेटिक फैक्टर्स कुछ हद तक डेफिनेटली कोई भी इसमें जेनेटिक फैक्टर्स कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं. तो वैसे ही सोरियासिस में इट इज सेड दैट if one parent is affected there is a chance of 10 to 20% chance of getting psoriasis. If both the parents are affected it is 20 to 25% chance getting affected. तो ये जेनेटिक स्टेटिस्टिक्स है कि जहाँ पे आप जेनेटिक फैक्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट इट डज नॉट मीन कि मेरे मम्मी डैडी को नहीं था, मेरे घर में खानदान में किसी को नहीं, मुझे क्यों हुआ. दैट इज अ क्वेश्चन विच नॉर्मली पीपल आस्क अस, आवर पेशेंट्स आस्क, एंड ऑनेस्टली there is no answer to it. Okay, so we have to accept that psoriasis is something which is an autoimmune condition, anybody can get it, and but इसमें ये होता है कि ट्रिगर फैक्टर्स डेफिनेटली हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकते हैं. किसी में स्ट्रेस से ट्रिगर होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ट्रिगर करती है, कुछ मेडिसिन होती है जो ट्रिगर कर सकती है.
there are certain chemicals which can trigger. So these are something wherein trigger factors could be there. So I normally tell my patients, I normally give them this example, जैसे अस्थमा जो होता है, अस्थमा किसी को भी हो सकता है, but it could be well controlled. There would be only trigger factors to it. ठंडा खाने से हुआ, climate change होने से हुआ. वैसे psoriasis is a very well controlled disease, but it will have trigger factors. So you can't say that psoriasis मुझे क्यों हुआ है, उसका कोई एक specific reason आपको शायद ही कहीं मिलेगा. राइट. चूंकि ये स्किन से रिलेटेड एक कंडीशन है, और हम सब जानते हैं जब सोरायसिस होता है तो बहुत ड्राई पैचेस होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं स्किन पे, और कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम सोरियासिस के पेशेंट को टच करेंगे या उनके इस्तेमाल की गई चीजों को शेयर करेंगे तो हमें भी हो जाएगा. इज सोरायसिस कंटेजियस, डॉक्टर? Absolutely no. Psoriasis is a non-contagious disorder. People do have this fear that when we touch or when we sleep together with our partner, we might get psoriasis. It is absolutely a myth. Psoriasis is a non-contagious disorder. Nobody is going to get affected by staying with them, by living with them, by working with them. So that's a myth, and completely disagree with that psoriasis could be contagious. बिल्कुल. तो अगर कोई सोरियासिस के पेशेंट आपके आसपास हैं तो घबराइए मत. जरूरत इस बात की है कि आप उन पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाए, सही डॉक्टर के पास, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाए, ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके और आराम मिल सके. इससे बिल्कुल मत घबराइए कि आपको छूने से उनको सोरियासिस हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है. अनदर थिंग डॉक्टर, कई बार कहने में आता है कि जिनकी स्किन ड्राई होती है या जो बहुत ज्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते हैं, वो भी रिस्क पे रहते हैं. ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है क्या, ड्राई स्किन? Yes, dry skin could be a risk factor for psoriasis. मोस्टली क्या होता है सोरियासिस में, जितना आपका स्किन मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा उतने चांसेस है कि आपको इचिंग नहीं होगा, उतना आपका फ्लेयर अप नहीं होगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मॉइस्चराइज आवर स्किन. पर्टिकुलरली पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट्स, दे नीड टू मॉइस्चराइज द स्किन डेली बेसिस पे एज पर द नीड ऑफ द स्किन. हम्म. अभी जो मौसम, जो क्लाइमेट पूरे इंडिया में है, वो कई जगह पर बहुत ड्राई क्लाइमेट है. ये सीजन चेंज तो है ही, वेदर तो चेंज हो ही रहा है. हम धीरे धीरे विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हवा है वो काफी अब कई इलाकों में हमारे देश के ठंडी होने लग गई है, सुबह भी और देर शाम के बाद भी. ऐसे में कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज खुद को नहीं करते, और हम देखते हैं कि स्किन में ऐसे पैचेस पड़ने लग जाते हैं. तो क्या मॉइस्चराइज करना इस वक्त एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारी स्किन काफी प्रोन रहती है? या फिर मॉइस्चराइज अगर हम कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर किस तरह का हो? कई लोग बहुत ज्यादा परफ्यूम सेंटेड तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज करना पसंद करते हैं, तो इसके लिए भी क्या कोई? बेसिकली मॉइस्चराइज हमें डेफिनेटली प्रायर जैसे विंटर स्टार्ट होता है तब से ही हमें प्रॉपरली मॉइस्चराइज करने पे हमें फोकस करना चाहिए. पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद सोरियासिस है, दे शुड टेक अटमोस्ट केयर बिकॉज फ्लेयर अप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नाउ फॉर ऑल सोरियासिस पेशेंट्स और इन जनरल ऑल्सो, as dermatologists we always advise try to keep fragrance free products. फ्रेग्रेंस फ्री इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज जो स्किन को इरिटेट कर सकती है वो आपके सोरियासिस को ट्रिगर कर सकती है. इसलिए आप जितना हो सके कोई फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स मत यूज करो. मॉइस्चराइजर अगेन इज वन ऑफ देम, जहाँ पे हम चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स में मॉइस्चराइजर फ्रेग्रेंस फ्री रहे. एंड बेसिकली कौन से टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करना है, लोशन यूज करना है, क्रीम यूज करना है, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन आप कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में हो, आप कौन से स्किन टाइप से हो, एंड व्हाट सूट्स यू बेस्ट. अल्टीमेटली एम इज कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन हो. ऐसा ना हो कि आपने लगाया और 1 घंटे के बाद आपकी स्किन कंप्लीटली ड्राई लग रही है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू वॉश योर अप्लाई योर मॉइस्चराइजर एट नाइट. सो कभी कभी ये होता है कि कुछ कुछ स्किन में एवरी 2 to 3 आवर्स भी मॉइस्चराइजर करने की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है. बिल्कुल. और ऐसे ही जो लोग बहुत ज्यादा एयर कंडीशंस में रहते हैं उनके साथ भी होता है, बार बार स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील करती है और आप उसको इच करने लग जाते हो, रैशेस कई बार होते हैं. तो मॉइस्चराइजिंग इज इम्पोर्टेंट. आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. इज देयर अ वे और आर देयर वेज टू प्रिवेंट सोरियासिस?
See, psoriasis, as it is autoimmune condition, it all is about having a balanced lifestyle. You eat well, you sleep well, you keep your life stress free, and take care of your skin with good products. That is what comes in prevention. सोरियासिस सिंस इट्स ऑटोइम्यून, आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपने ये सब हम कर रहे हैं और अभी मुझे नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी ऐसे होता है कि किसी किसी को ट्रिगर हो जाता है। सो दैट ट्रिगर इज समथिंग विच इज नॉट इन अ हैंड, बट प्रिवेंशन डेफिनेटली इज इन अ हैंड, एंड दिस इज समथिंग विच इज फॉर ऑल ऑटोइम्यून कंडीशंस। फिर वो सोरियासिस हो, वो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सब जगह हमारा focus should be on a good lifestyle. So, eating well, eating right, taking less stress, sleeping well, it is very important. Right, and using right products as well, Right. as you said initially. Yes. Right. अब जब products की बात हो ही रही है तो market is flooded with products. ये market gimmick इतना आजकल overpowering हो गया है. We have social media influencers, we have influencers almost everywhere. और कई लोग तो बहुत सारे products के साथ experiment भी कर रहे हैं. You know, this time they are buying this, 2 month के बाद हम कुछ और product पे switch कर जाते हैं. Customized products, इतना कुछ आप market में available है. तो इससे खुद को कैसे हम बचाएं और क्या बचाना जरूरी भी है, या इट्स ओके टू एक्सपेरिमेंट विद प्रोडक्ट्स? See, basically, I always tell, see, the social media is going to be there always. We have to use our common sense, our knowledge, our brains to see हमें क्या करना है. Because see, today there will be one influencer talking about niacinamide. Tomorrow there would be another one, retinol, and I'm seeing lot of people, particularly youngsters, they just give away. They just keep on buying, using products. Many times it does happen, and I think I should use this opportunity, this platform, to educate the public that many times I have seen people buying creams from parlors or from cosmetologists or from so called आयुर्वेदिक के नाम पे या होममेड के नाम पे जो चलता है. Many times these products are just given in some dubbies and tubes which are not labeled at all, which just mentions some cream, XYZ cream. ना ingredients mention है ना कुछ. Please don't fall prey to it. Whenever you purchase from anybody, please ask them the ingredients क्या है उसके अंदर, because many of these creams ना can contain steroids. And we are dealing with lot of steroid side effects, and India is a country जहाँ पे सबसे ज़्यादा steroid use होता है off label without doctor's recommendation. So please be aware कि आप जब कोई क्रीम यूज कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, आप उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, R&D करो प्रॉपर. Ask your dermatologist, cross check with your dermatologist again that whether what you are using is right for your skin or not. Otherwise you will just get lost in the flow, because इतना कुछ है मार्केट में कि many times we dermats can't keep a track of it. So it does happen कि every 7th day, many times it does happen कि I learn a new name from the patients who are coming to me कि I'm using this product. So that's the fact, and we have to accept it. आपने बिल्कुल सही कहा, और वाकई में खासकर हमारी सोसाइटी, हमारे देश में, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकेशन इज सो इजीली एक्सेसिबल. केमिस्ट शॉप पे आप जाइए बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और कुछ नहीं भी, आपको नाम भी नहीं पता है अगर क्रीम का, आप बोल देंगे कि मुझे थोड़ी इचिंग हो रही है, भैया कोई क्रीम दे दो, तो आपको पता नहीं उस क्रीम में क्या है. और कई बार जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो जिस प्रॉब्लम के लिए हमने वो क्रीम लगाई होती है, वो प्रॉब्लम तो एक तरफ, जो नई प्रॉब्लम्स जैसा कि आप कह रही हैं स्टेरॉइड मोस्टली उन क्रीम्स में होता है, वो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे डील करना भी एक अलग ही ऑर्डील होता है. बहुत जरूरी है कि हम पहले डॉक्टर को दिखाएं, इस तरह के मार्केट गिमिक और इन सब के झमेले में ना पड़े, इस जाल में ना फंसे. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चूंकि आपने जिक्र किया है डॉक्टर स्टेरॉइड का, और ये अगेन एक बहुत ही हार्ड फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग बिना जाने स्टेरॉइड के क्रीम्स लंबे समय से, कभी एक्ने के नाम पे, कभी किसी स्किन एलर्जी के नाम पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या फेयरनेस के नाम पे, और उनको पता ही नहीं है कि उसमें क्या है. तो क्या साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और कितना ज्यादा स्टेरॉइड अब्यूज झेल चुके होते हैं? See, basically, steroids, I always tell, steroids is a wonder drug, but if used properly. Right. जैसे हमने देखा था कोविड के पेंडेमिक के वक्त, इनिशियली स्टेरॉइड्स का इतना मिसयूज हुआ था
कि बाद में हमें ब्लैक फंगस को वी हैड टू लाइक वी फेसिंग ब्लैक फंगस। सो वैसे ही स्टेरॉइड जब आप यूज करते हो, स्टेरॉइड को अगर राइट ड्यूरेशन, राइट पोटेंसी एंड अंडर सुपरविजन यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट स्टेरॉइड ऐसा है जहाँ पे आदत सी लग जाती है, तो द मोमेंट यू अप्लाई स्टेरॉइड एवरीथिंग वेनिशेस एंड यू फील वाओ दिस इज अ वंडर मेडिसिन। फिर आपको लगता है अब मुझे डॉक्टर को दिखाने की भी नहीं जरूरत है, मुझे राइट क्रीम मिल गया और मैं लगाती रहूंगी या लगाता रहूंगा। सो दैट्स वेयर द चैलेंज कम्स, बिकॉज स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट एज अर्ली एज 4 वीक्स टू 6 वीक्स दिखना शुरू हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स में जो कॉमनली हम देखते हैं कि स्टेरॉइड बंद करते से ही वापस से रिबाउंड आना शुरू होता है, दैट इज समथिंग विच इज अ स्टेरॉइड साइड इफेक्ट। स्ट्रेच मार्क्स होना, अगेन स्टेरॉइड साइड इफेक्ट। एक्ने आना, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आना जहाँ पे हम स्टेरॉइड लगा रहे थे, अगेन अ साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड। एंड प्लस स्टेरॉइड्स जब आप लगाते हो इट डजेंट मीन कि वो स्किन में ही रह रहा है, वो कुछ अमाउंट में आपकी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड फॉर दैट इट माइट गिव यू हायर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबिसिटी, वेट गेन, पीसीओडी, बाल आना उस जगह पे जहाँ पे हम स्टेरॉइड लगा रहे हैं। दिस आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्टेरॉइड्स। So I don't say steroids is not something which is not good, particularly when I'm talking about psoriasis, because psoriasis का mainstay of the treatment steroid हो सकता है, but आपको उसको under supervision, under dermat supervision आप उसको अगर use करोगे तो problem 90% of the times you won't face any problem. बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कितना देना है, कब तक देना है, कैसे उसे धीरे धीरे कम करना है। तो ये सब टेक्निक जो है एक डॉक्टर जानते हैं। इसलिए प्लीज ओवर द काउंटर मेडिकेशन और इन्फ्लुएंसर्स जो एंडोर्स कर रहे हैं, मार्केट में जो इतने प्रोडक्ट्स हैं उन पर मत जाइए। और अगर कोई भी तकलीफ है तो सबसे पहले एक डॉक्टर को दिखाइए। इनफैक्ट प्रोडक्ट चूज करने में, अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज करने में भी आपको दिक्कत हो रही है कि कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें, कौन सा सनस्क्रीन यूज करें, स्किन टाइप क्या है, please go and take the advice of the right person, which is a qualified dermat. तो ये बहुत जरूरी है। सोराइसिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर, और डेफिनेटली हम ये जानना चाहेंगे कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है और इस तरह के साइंस लेकर आता है कि उसे शायद सोराइसिस है, तो क्या किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? क्या कोई टेस्ट होता है या जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यू कैन से कि हाँ सोरियासिस सोरियासिस है? ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्लिनिकली बहुत इजीली डायग्नोस हो जाता है। सो मेनी, बट प्रॉब्लम वही होता है जैसे आपने बताया कुछ देर पहले कि पीपल गो टू ओटीसी, ओवर द काउंटर, इचिंग हो रहा है, कोई मेडिसिन लगा लिया, और उस मेडिसिन में अगर स्टेरॉइड रहता है तो वो स्टेरॉइड की वजह से वो दब जाता है। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक शायद उसका चेंज हो जाता है, वॉट एवर इट वॉज, जैसे दिख रहा था वो स्टार्टिंग में कुछ और दिखता है, और उसके ऊपर अगर कभी फंगल इन्फेक्शंस अगर है आजू बाजू में या उस सेम पर्सन में, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये सोरियासिस है कि ये और कुछ है। उस वक्त आपके डॉक्टर शायद आपको स्किन बायोप्सी करने बोले, बट 90% ऑफ द पेशेंट्स में सोरियासिस डायग्नोस हो जाता है विदाउट एनीथिंग। इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपके स्किन डॉक्टर्स, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट उसे काफ़ी इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो दे माइट टेल यू टू डू अ स्किन बायोप्सी। और स्किन बायोप्सी जैसा नॉर्मल बायोप्सी में हमको बहुत स्किन डर बायोप्सी लगता है इज ये। इट्स वेरी सिंपल। स्किन बायोप्सी जैसे ही हम बायोप्सी बोलते हैं बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कैंसर की तरफ तो नहीं सोच रहे हैं ये वो, बट बिलीव मी स्किन बायोप्सी वेरी सिंपल है। आपका एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं और उसको आप एग्जामिनेशन के लिए भेजते हो। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि स्किन के कंडीशंस में आप सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं होता है, और स्किन की कंडीशंस आपके ब्लड लेवल में जाकर नहीं पता कर सकते हैं। तो मेनी ऑफ द स्किन कंडीशंस में ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए अगर उसको डायग्नोस करना है तो आइदर इट विल बी क्लिनिकल या फिर डर्मेटोस्कोपी, हम लोग एक स्पेशलाइज कैमरा के थ्रू चेक करके पता कर सकते हैं, या कभी कभी स्किन बायोप्सी। एज आई टोल्ड, स्किन बायोप्सी बहुत कम लोगों में जरूरत पड़ती है, मेनी टाइम्स इट इज मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड बाय डर्मेटोस्कोप। बिल्कुल। एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है डॉक्टर? सोरियासिस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं मैं नॉर्मली डिवाइड करती हूँ उनको क्रीम्स में, कुछ मेडिकेशंस ओरल टैबलेट्स में, और कुछ इंजेक्टेबल्स। तो डिपेंडिंग आपका सोरियासिस कितना है, कितना सीवियर है, आपने पहले क्या ट्रीटमेंट लिया है, कितनी बार अब वो फ्लेयर अप हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, उस पर सारा डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में सोचेंगे।
तो नॉर्मली जब हम शुरू करते हैं वी स्टार्ट विथ टॉपिकल क्रीम्स में टॉपिकल स्टेरॉइड्स आते हैं एंड मॉइस्चराइजर्स, कुछ स्टेरॉइड स्पेरिंग मेडिकेशंस आते हैं और जैसे कि टैक्रोलिमस हो गया, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स एंड ऑल दिस मेडिकेशंस वी स्टार्ट। बट मोस्टली सोरियासिस का स्टार्टिंग के ट्रीटमेंट में मोस्ट ऑफ द सोरियासिस इज इजीली कंट्रोलेबल बाय क्रीम्स एंड इचिंग कंट्रोल करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती है। सेकेंड स्टेज पे अगर हमें लगता है कि ये सोरियासिस कंट्रोल नहीं होने वाला है या इट इज समथिंग विच इज शोइंग सीवियर साइंस ऑफ या काफ़ी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी है, तब जाकर हम कुछ ओरल टैबलेट शुरू करते हैं जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस का रोल होता है एंड नाउ डेज बायोलॉजिकल्स आर अवेलेबल। सो मेनी टाइम्स आई टेल पीपल हु आर हैविंग सीवियर सोरियासिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू या बहुत सारा ट्रीटमेंट होकर भी बार बार रिलैप्स होते जा रहा है, go for biologicals. Biologicals injectable medications है, they work very well in psoriasis. Initially India was not a country जहाँ पे काफ़ी biologicals यूज होता था, but अभी लास्ट 8 to 10 years में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है एंड वी ऑल प्रिफर बायोलॉजिकल्स बिकॉज उसमें आपका रेमिशन जो होता है या लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। राइट। ये भी एक बहुत आम सवाल है जो आपने भी अपने जवाब में कहा, जो आमतौर पे जो पेशेंट्स है वो पूछते हैं कि क्या ये कम्प्लीटली क्योरेबल है, क्या ये पूरी तरीके से ठीक होगा, क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब मुझे ये चिंता नहीं करनी होगी कि आने वाले समय में मुझे फिर से सोरियासिस ना हो जाए। आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर। अगर आपने कोई डायबिटिक पेशेंट आपकी फैमिली में देखा है और आपको लगता है कि डायबिटीज़ काफ़ी हद तक पूरा यानी आपको पता है कि डायबिटीज़ पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं हो सकता, आप उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इट्स अ सेम सिचुएशन। आप कितने अच्छे से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन दैट। कुछ डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन पे शुरू होकर डाइट पे मैनेज करना शुरू कर लेते हैं, एक्सरसाइज पे मैनेज करना शुरू कर लेते हैं। वैसे ही कुछ सोरियासिस पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में चले जाते हैं और उसके बाद सिर्फ मॉइस्चराइजर पे मेंटेन होना शुरू हो जाता है। सो वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट कि हम उस कैटेगरी में फिट हो जाए, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर एक जन उसमें फिट हो सकता है। कुछ इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है, शायद लाइफ लॉन्ग भी चलता है। तो इस केसेस में हम नॉर्मली बात करते हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल्स, जहाँ पे रेमिशन देखा गया है कि 2 साल से लेके 10 साल तक के बीच में रेमिशन चले जाता है, तो दैट इज समथिंग विच कैन बी ऑप्टेड फॉर। राइट। सोरियासिस को लेकर एक और सवाल जो लोग आमतौर पर पूछते हैं वो ये कि क्या सन रेज का इसमें कोई रोल है, क्या धूप दिखाने से या विटामिन डी लेने से ये ठीक हो सकता है, क्या कोई कोरिलेशन है? सी डेफिनेटली देर इज़ अ कोरिलेशन, इट इज़ नॉट लाइक कि उससे ठीक हो जाएगा, बट सोरियासिस के पेशेंट्स में नॉर्मली देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी होती है। प्लस होता ये है कि सोरियासिस जैसे हम बोलते हैं कि सोरियासिस का एक इफेक्ट आपके बोन्स और जॉइंट्स पे भी होता है, जहाँ पे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस की बात करते हैं, इसीलिए हमें विटामिन डी एक्सपोजर इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो सोरियासिस में जो दी जाती है जिसको लगाकर धूप दिखाना ज़रूरी होता है, तो वो वहाँ पे आपका सोरियासिस में डेफिनेटली सन एक्सपोजर से हेल्प मिलता है, बट इट कांट क्योर, बट येस इट इज़ एन एडजुवेंट थिंग जहाँ पे सोरियासिस में सन एक्सपोजर का रोल है। और एनीवेज हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए ही, तो जब भी मौका मिले और खासकर वो समय दिन के जब आप धूप अगर लेंगे या धूप सेकना जिसे हम कहते हैं और विटामिन डी हमें मिलेगा, तो एनीवेज वो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता ही है। डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि जॉइंट्स के भी सोरायसिस होते हैं, नेल्स में भी होते हैं, तो ये क्या है, किस तरह से होते हैं, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है? सी बेसिकली सोरियासिस में ऐसे देखा गया है कि अराउंड 40% ऑफ द पीपल फेस सम जॉइंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ टाइम। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है जिसमें सिर्फ आपके जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, बट आपको स्किन पे कुछ नहीं दिखता है। बट कुछ लोगों में ऐसा होता है स्किन के साथ में उनका जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्किन के साथ में नेल इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो नेल्स पे खड्डे दिखना, नेल्स का कलर चेंज होना, नेल्स पे वाइट लाइंस दिखना, नेल्स इजीली ब्रेकेबल होना, दिस आर ऑल सोरियाटिक नेल्स का फीचर्स। बट इसमें क्या रहता है ना कि इसका जो ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी द सेम, कि आपको कुछ क्रीम्स दिया जाए या कुछ ये रहा,
बट अगर आपका आर्थराइटिस वेरी सीवियर है तो आपकी डॉक्टर आपको ओरल टैबलेट्स के बारे में बोलेगी कि आप ओरल टैबलेट्स लो, उससे आपका आर्थराइटिस विल नॉट इंक्रीज फर्दर एंड यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो दिस इज हाउ सोरियासिस कौन से टाइप का है, किस चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, विल मैटर अ लॉट कि आप कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज करेंगे उन पेशेंट के लिए. बिल्कुल। तो वापस अगर हम स्किन सोराइसिस की बात करें डॉक्टर, तो इसमें पोटेंशियल ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं जो सोरियासिस को फ्लेयर अप करते हैं? और ये सवाल हमारी एक व्यूअर का है, पूजा शर्मा. वो पूछ रही हैं व्हाट आर द पोटेंशियल ट्रिगर्स फॉर सोरियासिस फ्लेयर अप्स. See, basically for psoriasis flare-ups, the major trigger factor could be dry skin, climatic conditions, cold climates can trigger, stress can trigger. That is another very important factor which we observe a lot. Like जैसे stress increase होता है, फिर वो physical stress हो, mental stress हो, emotional stress हो, psoriasis trigger हो जाता है. So these are the trigger conditions. Apart from that, there could be certain activities like people who go for swimming or who go for पानी में जो ज़्यादा रहते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ वाटर, वो स्किन को ड्राई कर देता है, उसके कारण ट्रिगर होता है. एसी में रहने वाले लोगों का सोरियासिस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इफ दे डोंट मॉइस्चराइज. सो दिस आर ऑल द ट्रिगर फैक्टर्स. देर आर सर्टन मेडिकेशंस ऑल्सो विच आर नोन टू ट्रिगर. सम ऑफ देम इंक्लूड कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होते हैं, कुछ हायर पेन किलर्स होते हैं जो सोरियासिस को ट्रिगर कर सकते हैं. बिल्कुल. तो कुछ फैक्टर्स डेफिनेटली होते हैं जो सोरियासिस फ्लेयर अप्स को ट्रिगर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन ट्रिगर से भी हमें बचना है. एक और हमारे व्यूअर हैं फिरोज खान. उनका सवाल है, डॉक्टर आर देयर एनी ऑनगोइंग रिसर्च और ब्रेक थ्रूज इन सोरियासिस ट्रीटमेंट? See, there are a lot of research which are going in psoriasis treatment nowadays. जो latest अभी है, जैसे हम biologicals की बात कर रहे थे, उसमें भी biologicals में भी काफ़ी development हुआ है. There are newer molecules which are available, जहाँ पे आपका psoriasis well controlled होता है. And yes, there are certain things like gene therapy which though we do not have any like proper evidence right now, but definitely it is under research and things are working in this direction. So राइट. we still have a hope that we might be able to cure psoriasis. बिल्कुल. और नए नए एडवांसमेंट्स आए दिन हो ही रहे हैं, तो और बेटर होगा ट्रीटमेंट, ये हम उम्मीद कर ही सकते हैं. और डेफिनेटली अभी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और डेफिनेटली आपको रिलीफ मिल सकता है. कंट्रोलेबल सिचुएशन है. जरूरत इस बात की है कि हम डॉक्टर को दिखाएं. और डॉक्टर, एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं जो जब उनको स्किन में अगर लग रहा है कि सोराइसिस है या इस तरह के साइन सिम्टम्स हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है. एक वो होते हैं जो हम बीच में डिस्कस कर भी रहे थे कि दिल ट्राई ऑलमोस्ट एवरीथिंग. वो होम रेमेडीज, दादी का नुस्खा, नानी का नुस्खा, देन ओवर द काउंटर मेडिकेशन, इन्फ्लुएंसर, सब ट्राई करने के बाद जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं. तो इन दोनों के ही लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ता है, या ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता है जितना नॉर्मली अगर एक बंदा पहले ही आ जाए उसको लगेगा? बेसिकली कोई भी कंडीशन अगर आप अर्ली लेवल पे कंट्रोल कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स एंड आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या आपका सिवियरिटी ऑफ द डिजीज या आपको जो मेडिसिन यूज करनी पड़ रही है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए विल ऑलवेज बी लेसर. बट अगर आप सब कुछ ट्राई करके यू हैव स्पेंड दैट 6 months 1 year डूइंग XYZ ट्रीटमेंट्स, रिलैप्स रेमिशन, इसमें यह होता है कि मेनी टाइम्स सिंस इट इज़ एन ऑटोइम्यून कंडीशन, तो ये सोरियासिस बढ़ सकता है इस ड्यूरेशन में. एंड उसी को कंट्रोल करने के लिए हमें शायद हायर मेडिसिन, हायर डोज की ज़रूरत पड़ने लगे. सो डेफिनेटली अर्लियर द डायग्नोसिस, बेटर इज द ट्रीटमेंट, बेटर इज द ट्रीटमेंट आउटकम. राइट. आमतौर पर कितना वक्त लगता है मेडिकेशन शुरू होने के बाद जिसपे हमको असर दिखने लगे कि चलो अब आराम मिलना शुरू हो गया है या शुरू हो जाएगा? कितना वक्त मोटा मोटी लगता है? नॉर्मली 2 to 4 weeks, 1 महीने तक पेशेंस रखना पड़ता है. 2 to 4 weeks इज अ गुड टाइम टू सी रिजल्ट्स. It can take, in certain cases, it can take around 8 weeks to 12 weeks, but mostly 90% of the patients में 4 weeks में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है.
बिल्कुल। जो पेशेंट होते हैं सोराइसिस के, डेफिनेटली एक कंडीशन तो है ही जहां उन्हें बहुत ज्यादा इच हो रहा है, रैशेस है, सोशल स्टिग्मा भी कभी कभी वो रहता है, जो आपके साथ के लोग होते हैं वो उस तरह से नहीं समझ पाते हैं, और वो भी एक दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं, दो इट्स नॉट कंटेजियस, लेकिन फिर भी। तो एक इसी से एक मिलता हुआ सवाल हमारी एक व्यूअर है पूर्वी मेहरा, वो पूछ रही हैं कि व्हाट कैन बी डन टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोरियासिस एंड रिड्यूस स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द कंडीशन। क्या कोई काउंसलिंग भी आप देते हो पेशेंट्स को? सी बेसिकली सोरियासिस में काउंसलिंग आजकल काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है. देर आर सोशल ग्रुप्स टू सपोर्ट ईच अदर. डॉक्टर्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन their social media handles, wherein we have started taking a lot of awareness campaigns against it. We celebrate World Psoriasis Day on 29th October every year, which again is something जहाँ पे lot of activities happen throughout throughout India, wherein camps होते हैं, awareness camps होते हैं, and there is education of the patients and their families to help psoriatic patients. Plus, many of the pharma companies have counselors wherein जहाँ पे आपको थोड़ा भी है अगर हेल्प लगे, speak to your doctors. Many of the doctors, including us, we have an in-house counselor for psoriasis patients, because psoriasis में बहुत सी बार देखा गया है कि patient depression में बहुत जल्दी चले जाता है, and it becomes a very difficult scenario to live a normal life, a normal social life. Patient become isolated, they don't want to meet friends, they don't want to go for parties, they don't want to step out. घर काम वहीं पे फोकस रहता है. So for all these things, there are many things going on everywhere. You just need to approach your doctor, you just need to approach the social groups, and I think that should be sorted out. बिल्कुल, जैसे बीच में हम बात कर रहे थे ना कि सोशल मीडिया पर किस तरह से आजकल इन्फ्लुएंसर्स या दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई बार जिसके तरीके या उपाय नहीं बताने चाहिए वो भी बता देते हैं और लोग उन्हीं पर रिलाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज सोशल मीडिया का है, लेकिन उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, और उन पर हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए. जो सोशल ग्रुप्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल ग्रुप्स में वहां पर हैं, और काउंसलिंग एक तरह से होती है, तो उसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए. डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए, और सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर ने बताई है कि ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है, कंट्रोलेबल कंडीशन है रादर, और ऐसे में आपको परेशानी से निजात मिल जाएगी. लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये साइंस जब आपको हो रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि रैशेस है, इचिंग हो रही है और दिक्कत है, तो प्लीज गो टू द राइट पर्सन विच इज अ क्वालिफाइड डर्मैट. होता ये है डॉक्टर, जो हमने पहले भी बात की थी, कि सलून्स में, पार्लर्स में, इन्फ्लुएंसर्स में, कई बार इन सब में ही हम उलझ के रह जाते हैं, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि थोड़ी देर हो गई है, पहले आ जाते तो शायद बहुत आसानी से आराम मिल जाता. तो ये सेशन करने का एक मोटो ये भी है, ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम आपको अवेयर करें कि ये एक दिक्कत है, एक कंडीशन है. अगर ये दिक्कत आपको हो रही है तो प्लीज गो एंड अप्रोच द राइट पर्सन. ये वाकई में बहुत जरूरी है. एक और हमारी व्यूअर है कीर्ति कपूर. कीर्ति का सवाल है, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन सोरायसिस एंड अदर मेडिकल कंडीशंस? See, basically, Kirti, as I told you, psoriasis ka definitely it can affect your joints. It is a multi-system disorder. It is not only a skin disorder, but it affects your other body systems as well. The most important among this is bone and joints. But yes, there is a risk of like there is a risk of cardiovascular, CNS, लंग्स का, सब जगह पे ये कहीं ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर करता है. बट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, दैट इज बोन्स एंड जॉइंट्स. सो डेफिनेटली सोरियासिस का इम्पैक्ट अदर, इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, अदर ऑर्गन्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है. और अगर जॉइंट या नेल्स का सोरियासिस हो रहा है डॉक्टर, तो किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्योंकि स्किन सोरियासिस में तो हम एक डर्मैट के पास जा रहे हैं, दूसरे केसेस में हम किस डॉक्टर को approach करें? बेसिकली जॉइंट या नेल का सोरियासिस ऑल्सो इज वेरी इजीली डायग्नोस्ड बाय योर डर्मैट्स, बिकॉज दे आर मोर अवेयर अबाउट कि सोरियासिस का एक इम्पैक्ट इधर भी देखा जाता है. अभी मोस्टली क्या होता है ना, जब ओनली जॉइंट पेन्स होता है, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स जहाँ पे ये होता है कि हम लोगों ने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो पूरा
नी का CT MRI सब कुछ हो गया, nothing is coming out, and then the diagnosis of psoriatic arthritis is made. So many times, apart from your orthopedic, if you're going for the joints and ends, take a opinion. If nothing is working out, take an opinion of your dermat as well, because many times it can be that if it is missed by any one, the other might be able to diagnose it. So definitely for all psoriasis, with whatever it is, इजीली जो विजिबल रहते हैं, नेल्स का तो डेफिनेटली दिखता है, तो स्किन डॉक्टर्स विल डेफिनेटली मेक आउट. जॉइंट्स के इसमें जब ओनली जॉइंट पेन हो रहा है और जॉइंट से है, तो यस, यू माइट नीड द अदर स्पेशलिटी डॉक्टर एज वेल, द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, wherein we might have to work as a team and come to a conclusion what a patient is dealing with. So that is quite easy to do if we know ki, what we are looking at and what we are thinking about. बिल्कुल. और डॉक्टर, एज का क्या रिलेशन है सोरियासिस से? क्या किसी भी एज में हो सकता है, या एडल्ट्स को ज्यादा होता है, या किसी को भी हो सकता है? कोई स्टैट्स है जो ऐसा कुछ कहती हो? See, this is statistical data, जहाँ पे हम बोलते हैं कि 20 to 30 years is the age group जहाँ पे psoriasis सबसे ज़्यादा देखा जाता है, and then there is another peak which is in and between 45 to 55, mostly 40 to 50 वाले एज ग्रुप में अगेन एक सेकेंड पीक देखा जाता है. बट इट डजेंट मीन कि इस बीच में हमारी एज नहीं है तो हमें सोरियासिस नहीं हो सकता है. सोरियासिस कैन अफेक्ट एनीबडी एनी टाइम, बट ये दोनों पीक में मैक्सिमम सोरियाटिक पेशेंट्स फर्स्ट टाइम डायग्नोस होते हैं. राइट. और कई बार, क्योंकि इस पर भी हम थोड़ी बात कर चुके हैं कि किस तरह से एक सोशल स्टिग्मा है और टैबू कई बार हो जाता है, और आप पब्लिक में या सोशलाइज करने से हिचकिचाने लगते हैं अगर आपको सोरियासिस है. ऐसे में क्या पब्लिक जिम जाना, या यहाँ जहाँ ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग हैं और स्किन भी आपकी एक्सपोज्ड है, स्विमिंग करना, ये सब किया जा सकता है, या इस पर भी पाबंदी लगाई जाती है? सी बेसिकली ना, सोरियासिस में आपको कोई पाबंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन डेफिनेटली लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, बट ओनली थिंग इज कि जब आपका सोरियासिस काफ़ी एक्टिव है तो शायद आपके स्किन डॉक्टर्स आपको अवॉइड करने बोले कि स्विमिंग मत करिए, या एनीथिंग विच इज़ जहाँ पे आपका बहुत देर तक पानी में रहना है या बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा है, वो हम अवॉइड करने बोल सकते हैं. बट इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, इट इज़ फॉर सम डेज टिल द मेडिसिन स्टार्ट वर्किंग एंड थिंग्स कम अंडर कंट्रोल. उसके बाद यस, विद ड्यू प्रिकॉशंस दैट यू मॉइस्चराइज द स्किन प्रॉपरली, यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर बिफोर आफ्टर योर स्विमिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन डेफिनेटली गो हैड. जहाँ तक जिम का सवाल है, इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा कि लोग मुझे देखेंगे, इफ आई एम वेयरिंग अ जिम क्लोथ्स माई सोरियासिस वुड बी विजिबल एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट इज समथिंग जहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना कि सोरियासिस अगर डिजीज जब हम ट्रीट करना शुरू करते हैं, पैचेस ग्रेजुअली डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, एंड यू डोंट have those lesions very visible. You just need to moisturize your skin and you can live a normal life. So I don't think there is a challenge or there is any need to restrict any of your likings, yeah, your hobbies or anything, but yes, with some due precaution. Right. And doctor, before we sum up the whole session, any take-home message, any do's and don'ts for the patients of psoriasis? See, for psoriasis patients, I always tell few things which are very, very important. Limit your bathing time. आप बहुत ज़्यादा देर तक पानी में मत रहिए. Limit your bathing time to 5 minutes or less if possible. Try to use fragrance-free products as far as possible. फिर वो आपका soap हो, आपका moisturizer हो, आपका body wash हो. Don't use very hot water. Use lukewarm water to take bath. That is very important in your day-to-day life. Second thing is avoid stress, eat healthy. That is important for you because if you eat healthy, you avoid your stress, trigger factors आपके कम से कम रहेंगे. And third is take your medicines properly. अगर आप medicines properly लोगे, gradually your dose of the medicines will reduce and your doctor will be able to make you off medications and keep you only on moisturizers. That's it. Nothing else is needed. Psoriasis is a very, very controllable disease. You can manage your life and live with psoriasis. That's not a problem at all.
Thank you so very much, Dr. Pallavi Rathi. It was wonderful talking to you. Thank you for this very informative session for our viewers. And I'm sure they'll use this, information to prevent themselves and their near and dear ones from getting psoriasis. And in case if they get to see such signs, symptoms, they now know that rather for going for over-the-counter medication or for, home remedies, etc., one should go and approach the right person, which is a qualified dermat. Thank you so very much. Thank you. And viewers, thank you for your active participation in today's session. For latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, all about skin well-being. We're also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a great day ahead. Goodbye.